your time to watch SBN South Bengal News, news about truth. নমস্কার, সাউথ বেঙ্গল নিউজে আপনাদের স্বাগত। ছট উৎসবকে শহর আসানসোলে 106টি ওয়ার্ডে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করবার লক্ষ্যে আজ আসানসোল পৌর নিগমে আয়োজিত হয় এক বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন মুখ্য প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রশাসক মীর হাসিম, দিব্যেন্দু ভগত, চন্দ্রশেখর কুণ্ডু এবং পৌর নিগমের ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন আধিকারিকরা। আজকে ছট পুজো নিয়ে আমরা একটা রিভিউ মিটিং করলাম। ছট পুজোর আমরা কাজ দুর্গা পুজোর পর থেকে শুরু করে দিয়েছিলাম, কারণ এবছর যে ডিজাস্টার এসেছিল আমরা জানতাম যে এরকম ব্যাপার আছে যে আমাদের কাজ বেশি করতে হবে এবং নদীর পাড়, পুকুরের পাড় সব খারাপ হয়ে গেছে জলে। সেই জন্য আমরা দুর্গা পুজোর পর থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম এবং আমরা এবছর আমাদের 23টা ঘাট এক্সট্রা করতে পড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনবসতি এলাকা হয়ে গেছে, সেই জন্য 23টা ঘাট আমাদের এক্সট্রা করতে হলো এবছর। তো আমাদের ইলেকট্রিকের কাজ, পানীয় জল সরবরাহের কাজ, রাস্তা রিপেয়ার, কোথায় কোথায় স্টোন ডাস্ট দিতে হবে, কোথায় কোথায় নদী পারাপারের জন্য আপনাদের ব্রিজ করতে হবে, কাঠের টেম্পোরারি সেই সব নিয়ে আমাদের আজকে মেম্বার মীর হাসিম, আমাদের দিব্যেন্দু ভগত, চন্দ্রশেখর কুণ্ডু, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস্তব সাহেব, আমাদের উজ্জ্বলবাবু, সাদ্দাম, শ্যামবাবু, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের সবাইকে নিয়ে আমরা একটা রিভিউ মিটিং করলাম, যাতে সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্যানিটাইজ করা হয়, ব্লিচিং করা হয়, সাফাই করা হয় এবং আমাদের যে সমস্ত বোড়োগুলো রয়েছে সেই বোড়োগুলোতে আমরা একটা করে মনিটরিং কমিটি এবং ইনকোয়ারি কমিটি আমরা তৈরি করে দিলাম। সেই ইনকোয়ারি কমিটির মাধ্যমে এবং মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে আমাদের 2 দিন 10 এবং 11 এখানে অফিসে ইনকোয়ারি সেল একটা খোলা হবে। সেই সেল থেকে পরিচালিত হবে সমস্ত জায়গাগুলো। আসানসোলের ব্যস্ততম জায়গা পশ্চিম বাজার এলাকায় আজ থেকে 5 বছর আগে শিলান্যাস করা হয়েছিল একটি বিশাল পার্কিং প্লটের, কিন্তু কোনো এক অজানা কারণ বশত মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় সেই কাজ। জায়গাটির বেহাল অবস্থার কথা মাথায় রেখে আজ আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেন আসানসোল পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। बाईपास में बस्ती बाजार में वहाँ का एक तो पार्किंग रोड के ऊपर बनाने का प्रयास था। हम लोगों को 5 साल पहले इसको ओपनिंग किया था, लेकिन उसका इतना बुरी हालत हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग चिट्ठी कर दिया। आज ही चिट्ठी किया है कि उसको तुम अगर बंद नहीं करने सकोगे तो काम चालू करके उसको साफा सुथरा कीजिए, जिससे आदमी चल सके। सर वो बनेगी कि क्या होगा सर? वो हम लोग तो चाहता है वो अगर बनाने सकेगा तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दो। বাজারে সবজির দর তুঙ্গে হলেও তার সঠিক মূল্য পাচ্ছে না চাষিরা। চাষিদের অভিযোগ, বাজারে যে সমস্ত সবজি বিক্রি হচ্ছে কিলো প্রতি 60, 70, 80 টাকায়, তাদের কাছে পাইকারি কেনার সময় পাইকারি মালিকরা তাদের দিচ্ছে কিলো প্রতি 15 থেকে 20 টাকা। আমাদের প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে গিয়ে বিস্তর অভিযোগ আনেন সবজি চাষিরা।
हाँ, चास में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तरह का दिक्कत है। हम लोग तो लड़का बच्चा ले करके सोच लीजिए आज से नहीं कम से कम 40 पार हो गया। सोचिए हम जिस टाइम शादी उदी नहीं किए उस टाइम आकर के यहाँ ज़मीन पकड़े हैं, उस टाइम से चाष कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वही चाष करके फसल उपजाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं बाज़ार में, गद्दी में पैकार को, गद्दी में खरीदार को अंदर में माल हैंडल कर देते हैं। वो लोग जो है डाक करके बेचता है। पैकार लोग आया 10-20 ठो, सोच लीजिए कि ये बैगन अभी बिक रहा है 60 रुपये किलो, लेकिन वो बैगन का गद्दी में दाम लगाएगा पैकार लोग 15 रुपये किलो। और 10 ठो पैकार है, 10 ठो मिल के सब एकजुट हो गया, अरे इससे ज़्यादा दाम नहीं लगाना है, इससे ज़्यादा लगाएगा तो पोसाएगा नहीं। तो वैसा रेट में बेचना पड़ता है हम लोग का। हम लोग खेती संभालेंगे ना, अपने से जाके खुचरा में बिक्री करेंगे। यहाँ जितना न माल मवेशी का सारा बंगला में जितना गाय गोरू है सब खुला रहता है। हम लोग चारों तरफ घेरा बेरा दे करके चाष करते हैं, फिर भी गाय गोरू खेत में ढुक जाता है। इसलिए हम लोग खुचरा बेचने नहीं सकते हैं, बेचते हैं गद्दी में देते हैं, वो मुंशी लोग डाक करके बेचता है, पैकार लोग खरीदता है। खरीदने के बाद वो लोग अपना जो है 20 रुपया माल ख़रीदा है वो 60 रुपया बेचेगा, 80 रुपया बेचेगा। तो लाभ तो वो लोग ले रहा है। हम लोग को ये छोटा से गाछ लगा करके पौधा तैयारी करके लगाते हैं, लगाने के बाद फसल को 3 महीना में तैयार करते हैं। वर्षा हो गया, मौसम ख़राब हो गया, गाछ नष्ट हो जाता है, तो हम लोग का कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं मिल रहा, न राज्य सरकार दे रहा है न सेंट्रल दे रहा है। बोल रहा है कि ये तुम लोग तो किसान है ये नहीं है, तो बोलता दलील दिखाओ। तो दलील तो हम लोग को वास्तविक में नहीं है। हम लोग तो मालिक का ज़मीन में चाष करके खा रहे हैं, इसी से उपजा करके मालिक को भी खजाना देना पड़ता है बच्चों का। हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग पौधा को जब बीज रहता है उसको गिरा के 1 महीना में बीज तैयार होता है। बीज तैयार होने के बाद 3 महीना लगता है गाछ को तैयार करने में। तैयार करने के बाद भी बाज़ार में ले आने के बाद दाम नहीं मिलता है। जिस तरह से अभी देख रहे बाज़ार में पालक 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये तक मिलता है, लेकिन हम लोग को मिलता है उचित में 30 से 35 रुपया। अभी मैंने इसका जितना बात हुआ सब मैंने व्यापारी लोग अपना जगह वहाँ पर अपना मैंने मानिए तो जैसे बोलिए एकजुट करके बोलिए, चाहे धक्का मुक्की करके बोलिए, कमेटी है सब मैंने अपना जगह अपना अलग किए हुए हैं। और वो अपना मन मैंने जब भी एकजुट हो जाता है तो कभी 30 का माल है तो 10 में लगा के ले लेता है, ताकि कच्चा माल इसको रख तो सकते नहीं हैं, रखने से तो और गल जाएगा, इसीलिए इसको बेचना पड़ता है मजबूरन होके। हम लोग का चासी की संख्या लगभग 1360 से भी बेसी है आसनसोल में सिर्फ, जो कि सब कृषक मैंने एकदम मानिए तो खेती बाड़ी उसका यदि 10 फैमिली है तो सब 10 फैमिली भी पूरा एकदम कृषक पर ही निर्भर करता है। लेकिन हम लोग को उचित अभी तक मूल्य मिलता ही नहीं है। हम लोग इतना ही कोशिश करेंगे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार से, हम लोगों को जैसे क्षति होता है उसमें कुछ मुआवजा मिल जाए या फिर कुछ सहायता राशि मिले, ताकि हम लोग सही तरह से ज़िंदगी जी पाएँ। উৎসব মরশুমকে সামনে রেখে আসানসোল চৌরাসিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে মন্ত্রী মলয় ঘটকের হাত দিয়ে কিছু মানুষজনের মধ্যে বিতরণ করা হয় নতুন বস্ত্র। छठ पर्व आने वाले हैं और हम लोग का इस शहर में आसनसोल में बहुत सा परिवार है जो लोग छठ मैया का पूजा देते हैं। मेरा अपना जो परिवार है, अपना जो वाइफ है वो भी छठ पर्व करती है, तो इसलिए छठ पर्व के बारे में हमको मालूम है। 25-30 साल से मेरा घर में भी छठ होता है। तो छठ पे सबसे जो हम देखता है कि बहुत पालन करना पड़ता है, एकदम लाभ भाग से शुरू करके निरामिष खाना, घर में कुछ ये नहीं लाना, ये सब बहुत सा पालन होता है छठ पर्व में। और बहुत ही निष्ठा का साथ हम लोग का ये पर्व
किया जाता है। और हम लोग सरकार का तरफ से भी जहाँ जहाँ छठ होता है, चाहे पुकुर हो चाहे नदी हो, वहाँ पर लाइट लगाने से शुरू करके कैंप बनाना और छोटा मोटा जो चीज सामान लगता है, बहुत सा छठ का जो पुण्यार्थी है वो लोग गलती से नहीं लाते हैं, भूल जाते हैं, तो घाट में ही मिल जाता है। আসন্ন ছট উৎসবকে সামনে রেখে ছট ব্রতীদের পুজোর বিভিন্ন উপকরণ তাদের হাতে তুলে দেন কসুয়া কল্যাণ সমিতি। বেশ কিছু মানুষের হাতে ঘি, ধূপকাঠি, বাতাবি লেবু, গামছা, শাড়ি ও আরো অন্যান্য পূজার সামগ্রী তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা সমাজসেবী কৃষ্ণা প্রসাদ। कुशवाहा कल्याण समिति के बीच में हम लोग सभी कोई मौजूद हुए हैं। एक साथ में मिल करके ये भव्य जो बन रहा है, ये समझिए एक मंदिर बन रहा है, ये पूरे समाज के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए। तो इस तरह का एक सोच बहुत बड़ी बात है। तो कुशवाहा कल्याण समिति को, सभी सदस्यों को, बुजुर्ग को, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी का परमात्मा छठी मैया सबुद्धि दे, सुख समृद्धि दे, परिवार में भंडार भरे। শত ব্যস্ততার মাঝেও এই পবিত্র ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে নিজের বাড়িতে দিদিদের কাছে ভাই ফোঁটা নিলেন রাজ্যের আইন, বিচার ও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মলয় ঘটক। সাথে ছিলেন ভাই পশ্চিম বর্ধমান জেলার আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক। ফোঁটা দেওয়ার পর ভাইদের মঙ্গল কামনায় কি বললেন দিদি, আসুন শুনবো। কি বলতেন? আমি তো সবসময় মানে সবারই মঙ্গল চাই। তো আমার যারা নিজের ভাই বোন তাদের তো মঙ্গল সবসময়ই চাই আমি। আর এরা আমার খুবই মানে তিনজনেই ছোট আমার থেকে, আর ভীষণই ভালোবাসি ভাই বোনদের আমি। আর মলয় অভিজিৎ যে রাজনীতিতে এলেও আমার আরেক ভাই যে অরুণ, সে এখনো রাজনীতিতে নেই, পারিবারিক দিকেই থাকে ও বেশি। তো যাই হোক, তো আমি খুব গর্বিত, মানে গর্বিত এই জন্য যে এত উচ্চ পদে থেকেও, মন্ত্রী হয়েও মলয়ের কোনো অহংকার দেখিনি। আমার ছোট ভাই অভিজিৎও সেরকমই, প্রত্যেকেই প্রশংসা করে ওদের। দিনের সেরা বাছাই করা কিছু খবর এখনকার মতো এ পর্যন্তই। নমস্কার।